Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. Children, as the weather is changing, so take care of your health and keep your learning going on. Don't stop studying. Don't consider so lightly your study, as you all are board student. So it's very important for you to be vigilant toward your studies. Now, children, the topic which I am going to discuss with you today is about the prejudice and discrimination. Children, it is a topic from the chapter Attitude and Social Coordination, and which is the next revision test you are all going to give. That's why I am making, you can say that I am doing the revision of that particular topic, so that that particular thing will be best understand to you and you will be able to write in your examination paper, and you will be able to score the good marks. So children, so the topic which I am going to discuss with you today is prejudice and discrimination. Children, you know about this one. Prejudice. प्रेजुडाइज, अगर हम लोग एटीट्यूड की बात करें तो प्रेजुडाइज जो है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिहेवियरल कंपोनेंट है एटीट्यूड का. प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. Prejudice and discrimination. This is the topic. So prejudice is a cognitive component of an attitude and discrimination is a behavioral component of an attitude. Prejudice cognitive component यानी thought में है, और हम अगर उस thought की वजह से, और prejudice is always negative. It is, what is prejudice? It is a negative attitude toward any person, toward any group, toward any object, toward anything, toward any topic. किसी भी चीज को लेके अगर हम लोग एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करते हैं तो दैट इज मीन अ प्रेजुडाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेजुडाइज हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. So that is an behavioral component of an attitude. So this is the basic difference between prejudice and discrimination. Prejudice is a thought component of an attitude, a cognitive component, and discrimination is a behavioral component of an attitude. Prejudice are examples of attitude toward a particular group. They are usually negative and in many cases may be based on stereotype, the cognitive component about the specific group. Stereotype means होता है a cluster of ideas which you hold regarding any of the group. Stereotype is a cluster of ideas regarding the characteristics of a specific group. All members belonging to this group are assumed to possess these characteristics. हम ये सोचते हैं, मान लीजिए किसी ग्रुप को लेके हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, तो अगर किसी ग्रुप को लेके है तो इट बिकम स्टीरियोटाइप. For example, many of them have a negative attitude toward the other culture and toward the other caste. Like if we belong to the Hinduism, we have a very much prejudice toward the Muslim community. Okay, so we are holding a stereotype also, a cluster of ideas which we hold regarding them. Like we don't like their dressing sense, we don't like their eating pattern, we avoid their, we don't like their living style. So many things are there. All members belongs to this group are assumed to possess their characteristics. Often, stereotype consists of undesirable characteristics about the target group, and they lead to negative attitude or prejudice toward members of
स्पेसिफिक ग्रुप। स्टीरियोटाइप क्या है? एक अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है हम किसी अबाउट द टारगेट ग्रुप एंड इसकी वजह से नेगेटिव एटीट्यूड या प्रेजुडाइज हो रहा है उस ग्रुप के टुवर्ड। The cognitive component of prejudice is frequently accompanied by dislike or hatred or it is an affective component. आपने पढ़ा है बच्चों एटीट्यूड के 3 components होते हैं, ओके, A, B, C. C is a cognitive component and A is the affective component and B is the behavioral component. So, in this regarding, cognitive component जो होता है वो thought related होता है, thoughts से related होता है, ठीक है। और जो affective component होता है वो feeling से related होता है। तो अगर हम किसी के टुवर्ड नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, नेगेटिव थॉट रखेंगे, तो हमारी फीलिंग भी क्या होगी? वो डिसलाइक की होगी, हेट्रेड फीलिंग होगी, ओके। एंड द प्रेजुडिस में ऑल्सो गेट ट्रांसलेटेड इनटू डिस्क्रिमिनेशन विच इज अ बिहेवियरल कॉम्पोनेंट। जैसे कि पीपल बिहेव इन अ लेस पॉजिटिव वे टुवर्ड अ पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप कंपेयर टू अनदर ग्रुप विच दे फेवर। History contains numerous examples of discrimination based on race, social class, or caste. The genocide committed by the Nazis in Germany against Jewish people is an extreme example of how prejudice can lead to hatred, discrimination, and mass killing of innocent people. Prejudice. So, children, are you understanding that? How the prejudice is leading to the discrimination. How prejudice may lead to an affective component which is a feeling of dislike and hatred. You can find out that somewhere the rich people have a prejudice toward the poor people. Okay, so they start hating and dislike them and they discriminate them. They don't allow them to enter in their home. They don't allow them to enter in their workplace. So वो discriminate करते हैं। एक और चीज देखी गई है कि prejudice can exist without showing in the form of discrimination. Means जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि prejudice की वजह से हम लोग discrimination करें ही। मतलब कभी कभी ये देखा गया है, sometime it has been found that कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी करते हैं फिर भी प्रेजुडाइज जो होती है वो एग्जिस्ट रहती है पर्सन में। बेसिकली प्रेजुडाइज रिमेन इन द पर्सन। अ पर्सन ने किसी के टुवर्ड अगर नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म कर लिया है तो वो पर्सन में बना रहता है। हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, वो उसके बिहेवियर में ना आए, पर उसके कॉग्निटिव और इफेक्टिव एस्पेक्ट पे तो वो आएगा। Similarly, discrimination can both the things are there, vice versa. Prejudice होने पर भी discrimination नहीं होता और discrimination करने पर भी हो सकता है prejudice ना हो। ये केस तब होता है जिसे we do the observational learning। अगला अगर उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मैं उसके टुवर्ड नेगेटिव एटीट्यूड या प्रेजुडाइज मैंने फॉर्म नहीं किया, बट मेरे फैमिली मेम्बर्स ने उसके टुवर्ड प्रेजुडाइज फॉर्म किया है और वे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो मैं भी डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, मैंने कोई नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म नहीं किया है, बट मैं फिर भी डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज माई एनवायरमेंट इन विच आई एम लिविंग दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग। So prejudice can exist without the discrimination. Similarly, discrimination can exist without the prejudice. And the two go together very often. Wherever prejudice and discrimination exist, conflicts are very likely to arise between groups
within the same society. Our own society has witnessed many instances of discrimination with or without prejudice. With or without prejudice. So based on gender, religion, community, caste, physically handicap, illnesses such as AIDS. Moreover, in many cases, discriminative behavior can be curbed by law, but the cognitive and emotional component of prejudice are more difficult to change. It was trying to say that our government have made so many policies and framework which do not allow you to discriminate the people on the basis of race, caste, class, creed, religion and physically handicap or any kind of illnesses such as AIDS, HIV. तो उन्होंने ऐसा बनाया है कि आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, बट ठीक है डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी हो फिर भी वो पर्सन के अफेक्टिव और कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे तो रहता ही है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. I hope children you understand about what is prejudice and what is discrimination. How both are related to each other as well as how they are different from each other. Now children, you also have to study about that how the prejudice are learned. What are the sources of prejudice. ठीक है, prejudice के sources क्या हैं ये हम लोग को study करने हैं. इस कंसेप्ट में आपको सबसे पहला ये स्टडी करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच यू हैव टू स्टडी अबाउट इज द सोर्सेस ऑफ प्रेजुडाइस. सोर्सेस, ठीक है, प्रेजुडाइस के सोर्सेस क्या है, कहाँ से आ रहा है ये, बेसिकली फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग. ये नेगेटिव एटीट्यूड कैसे अराइज हो जा रहा है, क्यों अराइज हो रहा है, ठीक है, ये जानना है. तो सबसे पहला है कि कैसे अराइज हो रहा है, तो इसका सबसे पहला रीजन ये है लर्निंग. हम लोग प्रेजुडाइस लर्न कर लेते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ प्रेजुडाइस. सो लाइक अदर एटीट्यूड, जैसे बाकी जो भी एटीट्यूड है वो लर्न होते हैं. सो सिमिलरली प्रेजुडाइस आर ऑल्सो लर्न, दे आर ऑल्सो लर्न, ये भी लर्न हो जाते हैं. हाउ? थ्रू एसोसिएशन, थ्रू रिवॉर्ड और एनफोर्समेंट, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू ग्रुप और कल्चर नॉर्म, थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन दैट encourages prejudice. So children, are you getting my point? How the learning will be the first source of prejudice. So prejudice क्या हो रहे हैं, वो learn हो रहे हैं. We learn the negative attitude by observing other. Like हमारे घर में अगर हमारे elders जो हैं वो अगर for example rich और poor people के prejudice की बात कर रहे हैं, तो हमारे घर में हमारे elders ही हैं जो कि पुअर पीपल को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करके रखा है. तो वी ऑल्सो फॉर्म सच काइंड ऑफ एटीट्यूड. रिवॉर्ड एंड इन्फोर्समेंट के बेसिस पे अगर हम लोग पुअर पीपल्स की हेल्प करने जाते हैं, बचपन में चाइल्डहुड में ही बच्चे बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं, तो वो करने जाते हैं तो उसी के लिए उनको पनिशमेंट मिलता है कि डोंट टच दैम. आप उनको उसी समय सिखाते हो दे आर अनटचेबल, दे आर नॉट बिलोंग टू आवर सोसाइटी. So what the child will learn? They form negative attitude. Through association also they form negative attitude. Through their cultural norm, through exposure to different kind of information, the mass media. So prejudice are basically learned. The family, reference group, personal experience and media play a greater role in the learning of prejudice. People who learn prejudice attitude may develop a prejudiced personality and show low adjusting capacity, anxiety and feeling of hostility against the out group. आप जो पर्सन
प्रेजुडाइज लर्न कर जाता है किसी भी मीडियम से, ये जो मीडियम्स हमने अभी डिस्कस किए, किसी भी मीडियम से अगर वो प्रेजुडाइज लर्न कर जाता है तो हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, प्रेजुडाइज पर्सनालिटी है, जो कि फुल ऑफ होती है लो एडजस्टिंग कैपेसिटी से, एंजाइटी से और फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड द आउट ग्रुप। उनको अपने ग्रुप को बहुत बड़ा मानते हैं, दूसरे ग्रुप को बहुत छोटा करने लगते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर की भी टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, प्रेजुडाइज उसने लर्न कर लिया। तो लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्रेजुडाइज। व्हाट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ प्रेजुडाइज? सेकेंड सोर्स क्या है प्रेजुडाइज का? अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। A strong social identity, a strong social identity, a strong social identity and इन ग्रुप बायस, ये भी एक सोर्स है। इन ग्रुप बायस मीन्स वही है अपने ग्रुप को सुपीरियर करना और दूसरे के ग्रुप को इंफीरियर करना, बायस होते हैं। और स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी होने की वजह से भी हम लोग प्रेजुडाइज या नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। An individual who have a strong sense of social identity and have a very positive attitude toward their own group and boost this attitude by holding negative attitude toward the other group. These are shown as prejudice. सोसाइटी में जिसकी या पर्सन जिसकी भी स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी है तो वो वही होता है अपने ग्रुप को बहुत अच्छा मानना और दूसरे ग्रुप को के टुवर्ड नेगेटिव एटीट्यूड रखना या प्रेजुडाइज रखना, ये सारी चीज़ें करते हैं। Let us study about the third source of prejudice, which is the scapegoating. The third source of prejudice, scapegoating. ठीक है, scapegoating भी एक सोर्स है prejudice का। Okay, scapegoating. So I hope children you are understanding everything very properly. Scapegoating, this is a phenomena by which the majority group places the blame on a minority outgroup for its own social, economic or political problem. The minority is too weak or too small in number to defend itself against such accusations. Scapegoating is a group-based way of expression, frustration, and it is often result in negative attitude or prejudice against the weaker group. बेसिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्गर और वीकर ग्रुप की बात हो रही है और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात हो रही है। स्कैपगोटिंग में क्या होता है, जो मेजॉरिटी ग्रुप होती है दे आर हैविंग अ प्रेजुडाइज और द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द माइनॉरिटी ग्रुप। जो मेजॉरिटी में होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो वीकर सेक्शन या माइनॉरिटी ग्रुप के लिए प्रेजुडाइज रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनको कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ प्रेजुडाइज। वी लर्न द प्रेजुडाइज if the person is having a strong social identity, so they bias toward the group and majority also start blaming to the minority group. The next source of prejudice is kernel of truth concept. Kernel of truth. Kernel of, you can see here I am writing kernel of truth. Okay, ये भी एक सोर्स है प्रेजुडाइज का। ठीक है, क्या है ये? Sometimes the people may continue to hold stereotype because they think that after all there must be some truth. Kernel of truth in what everyone says about the other group. Even a few examples are sufficient to support the kernel of truth idea. Kernel of truth का मतलब होता है which is based on the concept of truth. उनको जो लोग स्टीरियोटाइप होते हैं यानी क्लस्टर ऑफ आइडियाज रखते हैं लोगों के टुवर्ड या नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको लगता है दे अज्यूम, दे फील
that somewhere they are right. उनको लगता है कि अगर किसी के टुवर्ड हम नेगेटिव रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, सच में वे लोग यही चीज़ें डिजर्व करते हैं, एंड ट्रूली दे बिलोंग टू सच कैटेगरी. हम लोग ये मान लेते हैं कि वे लोग उसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं. तो दैट इज अ कर्नल ऑफ ट्रुथ. नाउ द लास्ट सोर्स ऑफ प्रेजुडिस इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. Self-fulfilling prophecy. नाम से पता चल रहा है कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू सेल्फ फुलफिलिंग, यानी ये मानते हैं कि जिसके टुवर्ड हम प्रेजुडाइज रख रहे हैं वो खुद ही कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है हमारे प्रेजुडाइज को रखने के लिए. ठीक है, वो रखने के लिए मीन्स वो कुछ खुद ही ऐसा काम कर दे रहे हैं कि जिनकी वजह से हम लोग उनके टुवर्ड प्रेजुडाइज रख रहे हैं, और वो प्रेजुडाइज जो है वो चेंज भी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ देयर वर्क. ठीक है, द पर्सन देमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अ नेगेटिव एटीट्यूड फॉर देमसेल्फ. लाइक पुअर. Okay, in some cases, the group that is the target of prejudice is itself responsible for continuing the prejudice. The target group may behave in way that justify the prejudice that is confirm the negative expectation. For example, if the target group is described as dependent and therefore unable to make progress, the member of this target group may actually behave in a way that prove this description to be true. जैसे हम लोग गरीब लोगों या पुअर पीपल के लिए बहुत से लोगों की टेंडेंसी होती है कि दे हैव अ स्टीरियोटाइप एंड नेगेटिव एटीट्यूड दैट दे डोंट वांट टू डू द लेबर, दे डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क, दे ओनली begging to everyone for their own basic needs. So here the self-fulfilling prophecy concept will apply, that they themselves are responsible for holding such kind of negative attitude the people are holding about them. So children, I hope these sources are clear to you. So what are the things which we have discussed? We have discussed about what is prejudice, what is discrimination, how they are related to each other, how they are different from each other. Then what are the sources? We learned that learning is one of the source, strong social identity and in-group bias, kernel of truth concept, scapegoating, and self-fulfilling prophecy. These are some of the sources of prejudice. Now you also have to study how you will control the prejudice. What are the strategies for handling prejudice? ठीक है, आप प्रेजुडाइज को हैंडल कैसे करोगे? ठीक है, आपने जाना कि इन सोर्सेस से प्रेजुडाइज होता है, या आपने ये भी जाना कि प्रेजुडाइज क्या होता है. नाउ द स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग द प्रेजुडाइज. क्या करेंगे कि जिससे कि प्रेजुडाइज ना हो. ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड लोगों के फॉर्म ना हो. Knowing about the causes or sources would be the first step in handling prejudice. The strategies for handling prejudice would be effective if they aim at. सबसे पहले बच्चों, स्ट्रैटेजीज जानने से पहले हमको कुछ एम बनाने होंगे. हमें अपने कुछ उद्देश्य, कुछ पर्पस बनाने होंगे, और फिर उस एम को फॉलो करते हुए हम लोग अगर स्ट्रैटेजीज को भी फॉलो करेंगे तो फिर हम ज़रूर प्रेजुडाइज को हटा सकते हैं. तो स्ट्रैटेजीज के रेफरेंस में आपको दो चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, सबसे पहला आप एम पढ़ोगे, क्या उद्देश्य है जो आपको फॉलो करना है, और सेकेंड इज द गोल्स. ठीक है, तो एम में पढ़ते हैं. एम में क्या क्या चीज़ें आएंगी? व्हाट आर द थिंग्स विच कम अंडर द एम? सो
क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन बातों को हम ध्यान में रख के प्रेजुडाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडाइज। जो प्रेजुडाइज हम लोग लर्न कर रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज को कम करना, यानी कम से कम लर्न करिए, प्रेजुडाइज को लर्न ही नहीं करना है। चेंजिंग सच एटीट्यूड, ये मतलब ये सारे हमारे एम होने चाहिए। मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडाइज ना लर्न करिए और एटीट्यूड को चेंज करिए। डी एम्फेसाइजिंग एंड नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इन ग्रुप, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशल आइडेंटिटी को नहीं देनी है, डी एम्फेसाइज करना है, अनइम्पॉर्टेंट उसको देना है। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अमंग द विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडाइज, जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का जो टेंडेंसी है उसको भी डिस्करेज करना है। ठीक है, सो ये सारे कुछ एम हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? एटीट्यूड को चेंज करना, लर्निंग नहीं होनी चाहिए एटीट्यूड की, सच काइंड ऑफ एटीट्यूड की। नैरो सोशल आइडेंटिटी और इन ग्रुप बायस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की जो टेंडेंसी है अमंग द विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडाइज, उनको डिस्करेज करना है। ठीक है, अब ये एम तो हमारे ये हो रहे, हमने एम बना लिया कि ये हमारे उद्देश्य हैं। अब ये अचीव कैसे होंगे? हाउ दिस गोल्स कैन बी अचीव। ठीक है, ये एम्स और गोल्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए, बट हाउ दिस एम्स कैन बी अचीव्ड, आप इन एम्स को कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये हमको पढ़ना है, कैसे अचीव कर सकते हैं इन एम्स को। सबसे पहले एजुकेशन ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को खत्म कर सकते हो, कर्व कर सकते हो और हैंडल कर सकते हो। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन फॉर करेक्टिंग स्टीरियोटाइप related to specific target group and tackling the problem of a strong in-group bias. Education is only the strategy, it is only the medium through which you will be able to handle the prejudice, you will be able to handle the stereotype. What will be the second strategies? Increasing intergroup contact. इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट यानी इंटरग्रुप विद द अदर ग्रुप, आप कॉन्टैक्ट उनसे बढ़ाइए। कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन समटाइम क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसीलिए कांटेक्ट इंक्रीज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करिए, उनसे ये नहीं कि उनको आप पीछे कर दे रहे हो, अपनी बात ही ऊपर रखना, उनकी बातें नहीं सुनना। लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू अदर पीपल, कम्युनिकेट विद अदर पीपल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू हैंडल द प्रेजुडाइज। So first one is the education, and after the education come the increasing intergroup contact. Intergroup contact allow for direct communication, removal of mistrust between the group, and even discovery of positive qualities in the outgroup. However, these strategies are successful only if the two groups meet in a cooperative rather than competitive context. इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट तभी इंक्रीज हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे से मिलें कोऑपरेटिव वे में, ना कि कॉम्पिटिटिव वे में। क्लोज इंटरेक्शन हो बिटवीन द ग्रुप एंड हेल्प देम टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे की मदद करें। एंड टू ग्रुप्स आर नॉट डिफर इन द पावर और स्टेटस, पावर और स्टेटस को लेके कोई डिफ्रेंशिएशन ना करें, तभी ये कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज होंगे। लास्ट है हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रेदर देन ग्रुप आइडेंटिटी। ठीक है, हर एक की अपनी पहचान है,
हर एक को उस जैसे अगर कोई पर्सन किसी ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसको एज अ ग्रुप मत लीजिए। जैसे द हिंदू कम्युनिटी हैव अ वेरी प्रेजुडाइज अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी, तो हम लोग क्या मुस्लिम मतलब सारे लोग खराब हैं? नहीं। डोंट हाईलाइट द ग्रुप आइडेंटिटी, हाईलाइट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी rather than group identity. So I hope children you understand the topic very well and you all have discussed about so many things. Still, if you find any of the doubt, you will ask in the classroom. Thank you so much for carefully observing.